Assalamualaikum. Walaikum assalam, Ibrahim. How are you? Sir, I'm good. How are you? Alhamdulillah. अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लोसाई कल किया था। We know कि there are three loci in complex number. एक वो है जिसमें हमने सर्कल ड्रॉ करना है, एक वो है जिसमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, and the one is in which we have to draw the angle half lines. If the modulus of z minus a is equal to r, we have to draw the locus of z such that the distance of z from a always stays r. So it means we need to draw the radius, circle. So एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर a होगा और रेडियस r. अगर हो this magnitude या modulus of z minus a is equal to modulus of z minus b. So this locus of z ऐसा locus होगा कि distance of a and distance of z from a and distance of z from b is equal. So ऐसा तभी possible है जब आप perpendicular bisector draw करते हैं. So अगर एक तरफ मॉडुलस है और दूसरी तरफ एक कांस्टेंट नंबर है, उस केस में आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, और अगर दोनों तरफ मॉडुलस है देन आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. Then third is argument of z minus a is equal to theta, mean कि इस केस में हमें एक एंगल ड्रॉ करना है और रेफरेंस पॉइंट होगा a. मीन a अगर सपोज ये पॉइंट है a, सो इस a पॉइंट के साथ आपने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, उस हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल ड्रॉ करना है जो क्वेश्चन में मेंशन होगा. राइट. सो फिर ये हमने उसके बाद शेडिंग भी की थी. इफ इट इज ए modulus of z minus a is less than r, mean shading will be inside the circle. Modulus of z minus a is greater than r, shading is outside the circle. Modulus of z minus a is less than z minus b, so जिस साइड पे लेस होगा उस साइड पे शेडिंग. इधर modulus of z minus b is less, तो इस साइड पे शेडिंग. Where it say argument of z minus a is less than theta, so less than theta mean here, more than theta mean यहाँ पे आपको शेडिंग करनी है. तो ये हमने कल कुछ इसमें से लोकस किए थे. अब हम कोई क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट करते हैं.
Okay, ji, we are going to attempt question 9. Question 9. जी, please start करें question 9. The complex number 2 over minus 1 plus iota is denoted by u. Find the modulus and argument of u and u square. Modulus and argument of u and u square. क्या हम डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ u कर सकते हैं या हमें कुछ और पहले एडिशनली वर्किंग करनी पड़ेगी? यस, हम डायरेक्ट इस u का मॉडुलस वी कांट फाइंड. देन व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? आइलीन, एनी आइडिया व्हाट शुड वी डू टू फाइंड मॉडुलस ऑफ u? जी इब्राहिम, कैन यू टेल? Sir, do you multiply it by like 1 plus I on both sides? Like ऊपर नीचे? यस यस, वी you're right. देखिए, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर u x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हो, then modulus of u is under root x square plus y square. But the problem here is कि u is not written in terms of x plus iota y. So पहले आपने u को x plus iota y की फॉर्म में लिखना है. रहा how to write this u in the form of a plus b iota. Sir, we can multiply and divide it with the conjugate of the Yes, you are right. You are right. So 2 over minus 1 plus iota, हमने पहले इसका को डिवाइड करना है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई. सो -1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी. सो यू विल गेट u इज इक्वल टू न्यूमरेटर में -2 आयोटा, डिनोमिनेटर में -1 स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, -1 स्क्वायर माइनस iota square. So u is equal to -2 iota over -1 square is 1. Iota square is -1, so that will become +1. So we got u is equal to -2 iota over 2. So you 2 कॉमन लें, कैंसिल हो जाएगा, -1 minus iota. u is equal to -1 minus iota. So जब आपके पास u आ गया, now you can easily find the modulus. लेकिन एक काम कर लें, हमें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ u और u स्क्वायर दोनों फाइंड करने. सो पहले आप u स्क्वायर भी फाइंड कर लीजिए. सो u स्क्वायर इज सिंपल, इसी का अब आप स्क्वायर ले लीजिए. -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लेने का मतलब है +1 प्लस आयोटा का स्क्वायर. सो u स्क्वायर इज 1 plus 2 iota plus iota square. So u square is 2 iota.
सो जब u और u स्क्वायर अब आपके पास आ गया, अब इनके मॉडुलस और आर्गुमेंट करने। सो पहले u की बात करते हैं। u इज -1 माइनस आयोटा। सो व्हाट इज मॉडुलस? The square root of 2. Yes, under root 2. And what's the argument of u? Argument of u tan inverse 1/1, वो आता है 45 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? -1 रियल पार्ट भी माइनस है, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस है। सो थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस। सो आर्गुमेंट ऑफ u 180 प्लस 45 is 225 डिग्री। ठीक हो गया, ये हो गया u के लिए। नाउ फॉर u स्क्वायर, we know u square is 2 iota -2 आयोटा था, 2 आयोटा था ना। सो u स्क्वायर का मॉडुलस क्या होगा? इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है। सो अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 इज 2। ये इसका आ गया मॉडुलस। एंड आर्गुमेंट ऑफ u स्क्वायर, जी बताइए, आर्गुमेंट ऑफ u स्क्वायर अगर हम करें, आपके माइंड में यही आएगा tan इनवर्स y बाय x। व्हाट इज y? 2 ओवर x 0। 0 है ना, 1 कहां से आया? है ही नहीं इसमें। और 2 ओवर 0 तो अनडिफाइंड होता है। इसको वैसे मेंटली भी किया जा सकता है, लेकिन आप tan इनवर्स से आप सोचे tan इंफिनिटी कब होता है? 90. 90। सो ये 90 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या आप इसको आर्जेंट डायग्राम में बताइए, u स्क्वायर, वेयर इज u स्क्वायर? 2 आयोटा कहां पे होता है? 2 आयोटा इज लाइंग ऑन द इमेजिनरी लाइन। ठीक है। सो इसका रियल एक्सिस से ये एंगल कितना बन रहा है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो आर्गुमेंट ऑफ u स्क्वायर इज 90 डिग्री and modulus of u square is 2. G part 1 which was of 6 marks, is that clear? Okay, now second part. Second part is Yes, sir. sketch and I'm so sorry, I yes, think I already Raha. explained this, but why Which is one? it 2? Are you asking for the modulus of u square? Yes, sir. Because when you square it and then you underroot it, isn't it be like minus under root 2? We know u square is 0 plus 2 iota. If you take the modulus of u square, we know the formula is x square plus y square, means 0 square plus 2 square. We don't have to take the square of iota here. The formula is under root x Oh, square yes, plus y okay. square. Okay, ठीक है, sir, sorry. Thank you. Oh. Okay, now the second part. Sketch an Argand diagram showing the points representing the complex number u and u square. जी, sketch करें। Shading उसके बाद है, shade the region whose points represent the complex number z which satisfy the both inequality modulus of z is less than 2 and z minus u square less than z minus u. But the first thing is that we have to sketch on an Argand diagram
showing the points representing the complex number u and u square. जी जब भी आर्जन डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो स्केल रखें वो इक्वल रखिए, क्योंकि जब आपको सर्कल उसमें कहीं पे स्केच करना पड़ता है तो उसके लिए अगर स्केल इक्वल होगा तो ही वो सर्कल बनेगा। So label the points. This is say 1 scale ऊपर x axis y axis दोनों पे सेम रखें। This is real axis, this is imaginary axis. Okay जी, u and u square को हमने लेबल करना है। बताइए where is u? u is -1 minus iota, so -1 minus iota is here. This is the point -1 minus iota, so this is u. ठीक हो गया? Where is u square? 2 iota, so 2 iota mean here, this is u square. So उसने पहले कहा था शो करें आर्जन डायग्राम पे, तो वो हमने शो कर दिया। अब आगे shade the region whose points represent the complex number z which satisfy both the inequalities modulus of z is less than 2 and modulus of z minus u square is less than z minus u। देखिए inequality को बाद में करेंगे, पहले इसी किसी एक को ले लें। just take this one first. This is written modulus of z is equal to 2। बताइए यहाँ पे कौन सा लोकस बना है? ये कौन सा लोकस है, सर्कल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? रायान, आयान, for modulus of z is equal to 2 perpendicular bisector। नो रिवीजन। स्टार्ट जब लेक्चर हुआ उस वक्त भी बताया कि कब सर्कल बनता है और कब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। बताइए आयान जी। इब्राहिम, when to draw the circle and when we will draw perpendicular bisector? सो एक बात तो सिंपल सी बता दी कि मॉडुलस अगर एक तरफ हो तो सर्कल बनता है, दोनों तरफ हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। ऐसे ही है ना? मीन आपके पास जब होता z माइनस ए मॉडुलस इज इक्वल टू r, इसमें हम क्या ड्रॉ करते थे? सर्कल। और अगर हो z माइनस ए मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस बी मॉडुलस, इसमें क्या ड्रॉ करते थे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ए बी का। और यहाँ सर्कल जो बनता था उसका सेंटर होता था ए। आप बताइए कि मॉडुलस ऑफ z माइनस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2 में क्या ड्रॉ करेंगे? सर्कल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? सर्कल। उस सर्कल का सेंटर क्या होगा?
जी Eileen, what will be the center of that circle? Raha, what will be the center of the circle? Sir, 0? 0 0. मॉडुलस ऑफ z में से क्या माइनस हो रहा है? z में से कुछ भी नहीं, मतलब 0 + 0 आयोटा ये माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू 2. So the center is 0 0 and radius is 2. So आयान, इसका मतलब आप नहीं कर रही है. So center is 0 0. So सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर 0 0 एंड सर्कल रेडियस 2. रेडियस 2 मीन लेफ्ट पे 2, राइट पे 2, हर जगह 2 2 पॉइंट मार्क कर दें और एक सर्कल बना दें. सो दिस इज द सर्कल. ये लोकस हमने ड्रॉ किया. लेस देन 2 मीन शेडिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम लोकस ड्रॉ कर रहे हैं, शेडिंग बाद में होगी. ओके जी, अब बताइए ये कौन सा लोकस है? z - u² इज इक्वल टू z - u मॉडुलस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? u और u² का. वी नो दिस इज u एंड u². सो ये है u और u². इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो मिड पॉइंट से क्रॉस होगा और 90 डिग्री पे क्रॉस होगा. ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं जो मैंने की है, शेडिंग बाद में करेंगे, पहले लोकस बना लें, शेडिंग एंड पे करेंगे. जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप इनको देखें तो मिड पॉइंट आप बता सकते हैं इसका क्या है. इसका मिड पॉइंट क्या बनता है? वैसे इसका मिड पॉइंट बता सकते हैं u और u² का. -1 इधर रियल पार्ट है, -1 उधर है 0. -1 + 0/2 मीन अगर आप मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो -1 + 0/2. वैसे स्केचिंग है, कोई ऐसा मसला नहीं है. -1 + 2/2. सो इधर -0.5 एंड हियर 0.5. So center is -0.50. This one ऐसे ही है ना, ये आपको शो कर रहा हूँ -0.50. सो ये जस्ट एक फाइंड कर ले ताकि हमें आइडिया हो जाए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का. सो -0.5 एंड 0.5 से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. जरा देखिएगा, मैं बनाने लगा हूँ. मुझे बताइए क्या लग रहा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ज्यादा आसान होगा अगर मैं पहले उन दोनों लाइंस को ज्वाइन करूं ऐसे और फिर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं. ये आई थिंक बेहतर है. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लग रहा है. So this is the perpendicular bisector of u and u². जी लोकस दोनों बन गए, एक सर्कल भी बन गया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गया. अब हमने करनी है शेडिंग. जी शेडिंग अब देखिए जरा प्लीज. शेडिंग इज, here it says modulus of z is less than 2. Where is the shading? Inside the circle or outside the circle? Inside the circle. Modulus of z is less than 2. So circle के अंदर शेडिंग करनी है. और दूसरी कंडीशन क्या है? z - u² is less than z - u mod. बताइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की किस साइड पे शेडिंग होगी, u वाली साइड पे या u² वाली साइड पे? u². z - u² is less than, so u इस तरफ शेडिंग होनी चाहिए. so सर्कल के अंदर closer to u², inside the circle and closer to u².
शेडिंग कर दीजिए। जी, इज दैट क्लियर? कोई मसला? जी, should I move forward to the next question? सबके इम्प्रूव हुए, दो ग्रेड अभी तक जितने नंबर हैं, डी से बी, सी से ए। नहीं ऐसा कोई। फिर दोबारा देगा क्यों? फिर उससे दोबारा पढ़ा ही नहीं है फिर। अच्छा जी। काफी लोगों को लगा कान होता है वो मतलब है पढ़े चले। Okay, जी, now question 15. Question 15 is the complex number minus 2 plus iota is denoted by u. Given that u is the root of this equation, where k is real, find the value of k. G, write down the value of k. अगर ये इसका रूट है जी, x में आप u मीन माइनस 2 प्लस आयोटा पुट कर दें और सॉल्व कीजिए। सो माइनस 2 आयोटा क्यूब का मतलब है माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। माइनस 2 प्लस आयोटा होल क्यूब क्योंकि हमें ओपन करने के लिए बाइनोमियल लगाना पड़ेगा या उसका क्यूब का कोई फॉर्मूला आपको आना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं आता तो आप माइनस 2 प्लस आयोटा को माइनस 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 11x इज अगेन माइनस 2 प्लस आयोटा माइनस k इज इक्वल टू 0। सो k को उस तरफ शिफ्ट कर लिया, k उधर पॉजिटिव हो गया, सो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लिया। सो माइनस 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको ये आप ऐसे समझे जैसे लिखा हुआ है आयोटा माइनस 2 होल स्क्वायर। सो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 22 माइनस 11 आयोटा। फोर माइनस आयोटा इज 3 माइनस 4 आयोटा। उसने कहा के रियल है, इसका के आंसर रियल आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6 प्लस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। माइनस 4 आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा? प्लस 4 प्लस 22 माइनस 11 आयोटा इज इक्वल टू के। So 8 iota plus 3 iota minus 11 iota cancel. So 22 plus 4 is 26 minus 6 is 20. So the value of k is 20. Write down the other complex root of this equation.
जी कासिम, राइट डाउन द अदर कॉम्प्लेक्स रूट। जी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी कोई रूट कॉम्प्लेक्स हो वो हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो पेयर एक दूसरे का, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं। सो अगर एक रूट है -2 प्लस आयोटा, देन व्हाट इज द अदर रूट? -2 माइनस आयोटा। आपने कहा था जो भी निकाला उसको पुट कर दे, कहाँ पुट करेगा? तो ये तो नहीं कहा था ना आपने। सो -2 minus iota is the other root. Find the modulus and argument of u. u का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड कीजिए। u है आपके पास -2 प्लस आयोटा, सो मॉडुलस ऑफ u is under root -2 square plus 1 square. It is under root 5. आर्गुमेंट ऑफ u के लिए tan इनवर्स करेंगे y over x 1/2। What is tan inverse 1/2? 36, 26.6। बस ये तो नहीं आंसर, ये तो आंसर नहीं है। 153.4। ये किस क्वाड्रेंट में है कासिम? -2 प्लस आयोटा सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस 26.6 करेंगे, विच इज, so the argument of u is 153.4 degrees. रेडियन में भी कर सकते हैं। Okay, fourth part. Sketch an Argand diagram showing the point representing u. Shade the region whose points represent the complex numbers z, satisfying both the inequality ab and ab. मुझे ये बताइए ये कौन सा लोकस है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बिल्कुल। और ये कौन सा लोकस है? एंगल। और जो तीसरा लोकस हमने पढ़ा, एंगल ड्रॉ करना है जिसमें कल। अभी कर लेते हैं ना ये क्वेश्चन, देखिए। अच्छा जी, पहले तो आपको ड्रॉ करना है ना, यू शो करना है। चले यू शो करते हैं। यू क्या था क्वेश्चन में? -2 प्लस आयोटा।
ओके जी, z हमने सबसे पहले u हमने लेबल करना है, एंड u इज -2 प्लस आयोटा, सो दिस इज द पॉइंट u -2 प्लस आयोटा। डन। ओके, अब आपको ये बनाना है लोकस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन से 2 पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है? देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं। z माइनस क्या है? 0 प्लस 0 आयोटा, ऐसे ही है ना इधर, इज इक्वल टू माइनस कॉमन लें तो इट इज 2 प्लस 0 आयोटा। ये बात समझ आ रही है? सो कौन से 2 पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है? 0 0 का और 2 0 का, 0 0 एंड 2 0। सो 0 0 एंड 2 0 का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये बात क्लियर है सबको? 0 0 एंड 2 0। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 0 और 2 का कैसा होगा? ये तो एग्जैक्ट बन रहा है। 0 और 2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्ट आपको पता चल रहा है क्या है? इट इज दिस वन। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 0 एंड 2। सो इसके लिए कोई डाउट नहीं, ये एक्यूरेट बन रहा है। ये है एक लोकस हो गया। अब ये कौन सा लोकस बनाना है? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस u, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस u। तो सबसे पहले एंगल कहां बनाना है? u रेफरेंस पॉइंट। u तो पहले से ही बना हुआ है, ये बना हुआ है u। उस u पे मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर वहां से π/4 ड्रॉ करना है। सो बताइए π/4 क्या एंगल होता है? 45 डिग्री। यहां से π/4 मीन 45 डिग्री प्लॉट करना है, 45 डिग्री। वी नो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 90। अच्छा, 45 डिग्री एग्जैक्टली मुझे बताइए, मैं अगर ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, सॉरी वाई एक्सिस को कहां कट करेगा? क्या आप एक्यूरेटली बता सकते हैं कि मैं 45 डिग्री एक्यूरेटली किस वाई एक्सिस को कहां पे, क्या 4 पे कट करेगा, 3 पे करेगा, 3.5 पे, या आपको एक्यूरेट नहीं पता? डू वी नो कि ये एक्यूरेटली वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा? वी नो दैट 3 पे कट करेगा। उसकी रीजन बताऊं? और ये 3 पे कट करना है आपने। अगर आपने 3 पे कट ना किया तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये 2 से कट करेगा, 2 को 3 पे कट करेगा? सुनिए प्लीज। वी नो के वी हैव टू ड्रॉ द एंगल π/4। ये एंगल कितना है यहाँ पे? दिस एंगल 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है, ये 45 है, दूसरा भी सो 45 है। व्हाट इज द थर्ड एंगल? थर्ड 45, एक 90 है, दूसरा 45, तो थर्ड इज 180 में से माइनस करें 45 ना। सो अगर ये 45 है, वो भी 45 है, अगर ये एंगल 45 है, ये 45 है, इट मींस ये ट्रायंगल कौन सी बनी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। 45 45 टू एंगल्स आर इक्वल, इट मींस इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस है तो टू लेंथ्स, टू साइड्स इक्वल होंगी। यहां से लेकर यहां तक कितनी लेंथ है? दिस वन, दिस लेंथ इज 2। देखिए यू आपने खुद प्लॉट किया हुआ है 2 पे, कैसे निकालनी है आपने? ये -2 नहीं है, ये लेंथ कितनी है? 2। अब अगर ये लेंथ 2 है, इसका मतलब इधर भी लेंथ क्या होनी चाहिए? 2। सो इसलिए मैंने ये 1 था, यहां से 3 से क्रॉस करवाया। सो ये लोकस तो खैर बन गया। 0 से लेकर π/4 तक बनाना था, 0 से लेकर π/4, सो दिस इज 0 और वो π/4। अब आप बताइए शेडिंग कहां पे हो? शेडिंग, अगर हम सिर्फ
अगर हम सिर्फ इसको देखें तो बताइए शेडिंग कहाँ पे होगी? आर्गुमेंट ऑफ v माइनस u इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 4 मीन 0 से लेकर पाई बाय 4 के दरमियान यहाँ पे शेडिंग होगी ना। और अगर आप दूसरे को देखें, मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 मीन एक पॉइंट था 0 और एक पॉइंट था 2, तो किसके क्लोज? 0 के क्लोज शेडिंग होनी चाहिए या 2 के क्लोज? जीरो कह रहा है। आई डिड समथिंग रॉन्ग और आप लोगों ने बताया भी नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गलत बना हुआ है ना? वो पहले क्यों नहीं बोले यार आप लोग? क्या अब करेक्शन क्या होगी? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने गलत ड्रॉ किया हुआ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था 0 0 और 2 0 पे, और 2 0 कौन सा पॉइंट है? वो तो एक्स एक्सिस पे है, ये वाला 2 0। सो एक मिनट में इसकी भी करेक्शन कर लेता हूँ। सो दिस इज द लाइन फॉर दैट एंगल, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा कहाँ पे? 0 और 2 के मिडिल में, मीन 1 को क्रॉस करता हुआ। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो शेडिंग अब बताइए कहाँ पे होगी? क्लोजर टू 0। सो क्लोजर टू 0, 0 के क्लोज, एंड इनसाइड। सो आपकी शेडिंग बताइए कहाँ पे करनी है? हियर। ये मेरा बोथ कलर डार्क है, आप अपनी पेंसिल से लाइट से शेडिंग करेंगे। So between the angle 0 and pi by 4, but on the left of the perpendicular bisector, mean closer to 0 0। जी क्लियर है ये? ठीक है आया? ओके, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।